inshallah, very quickly we will study the last chapter of this semester and course. That is radiopharmaceutical and the method of radio labeling and its quality control. Okay, so just I will leave some topics of this chapter in, but we'll study the other few topics of chapter 8. Okay, this is I think chapter first 8 6 one. I'm sharing the screen now, so that please allow me. Ashfaq, please allow me to share the screen. Thank you. Okay. There are only 20 students at this moment. And okay, thank you. Gee, thank you very much. And so now screen is shared. And this is radiopharmaceutical and methods of radio labeling. So actually what we have studied in previous lectures, production of radionuclides and generating system. Generating system actually we establish for the facilitation of the remote areas to take and to facilitate and to provide the radionuclide at its highest activity for labeling and for the study of clinical studies for imaging and like that. Okay, so रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती हैं और ये किस तरह से डेवलप होती हैं, किस तरीके से इनको लेबल किया जाता है, किस तरीके से इनका अपना क्या एफिकेसी है. This is very in one aspect very easy, and in other aspect it is very tricky. So we can say that first of all, what is the radiopharmaceuticals? Just like there are common word which is known as pharmacy, pharmaceuticals. Pharmaceutical mean the compound which have ability, which have potential to tackle, to fix the diseases in the human bodies or in any other animal body. So pharmaceutical is a general term for all the drugs, for all the medicines being used in different ways for in healthcare issues. So what is meant by radiopharmaceutical? Radiopharmaceutical mean that if a pharmaceutical have some radioisotope in its structure, then it is known as radiopharmaceutical. So this is not much difficult as much different from pharmacy or pharmaceuticals, but it is just like a pharmaceutical product but having a radioisotope in its structure. So in other ways, there are two main kinds of radiopharmaceutical. One is in the form of complex and other in the form of a simple molecule. A simple molecule means just like a water molecule, just like any compound that is synthesized in the laboratory, having a particular structure without any complex formation. So any of the molecule, any of the element that is present in the structure of the molecule can be replaced with some radioisotope of that particular type of element. For example, if ciprofloxacin or fluoroquinolone having a fluorine atom in its structure, so if we just just replace through nucleophilic substitution reaction, fluorine is replaced by somewhat of radioactive fluorine. So this is no difference, but fluorine is a radionuclide and act as a radio emitter. So due to this reason, this type of pharmaceutical is called radiopharmaceutical, and it is not for all the molecule we can replace the atom of a particular type of through nucleophilic substitution reaction or electrophilic substitution reaction. But sometime we
just make a complex. Complex mean if there is some donor electron atom at the molecule of pharmaceutical, so if they have ability to donate the electron pair, then some metallic radioisotope can bind through coordinate covalent bond to a particular type of pharmaceutical or carrier molecule, and making a complex of radioisotope with that of molecule. So this is also known as radiopharmaceutical. so so these are the two type of radiopharmaceutical. The later radiopharmaceutical which having a complex formation, that is easy to form. It is a simple chemical reaction. Definitely most of you have studied about the complex formation, color changing reactions in which for the conformation of a particular type of salt in salt analysis. So definitely this is very simple chemical reaction. You just put a solution of a salt into that a particular type of a molecule and solution, and have make a complex and of different colors. But in case of nucleophilic substitution reaction or electrophilic substitution reaction, there is a particular type of chemical reaction in which some type one element is replaced by other nucleophile. So this is somewhat a complex chemical process and complex synthesis and difficult synthesis. So both are the procedures are actually adopted in the formation of radiopharmaceutical. Okay. So in other ways, you can say that radiopharmaceutical having a radioisotope in its structure in very simple way. कि अगर कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल है और उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है, तो ऐसी फार्मास्यूटिकल को हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. So we can say that there are different type of pharmaceuticals. Radiopharmaceutical was established, but there are certain ideal radiopharmaceutical that are being used, that are being established, developed. They should have a particular type of characteristic, because the preference and for the utilization of radiopharmaceutical. And one thing is very important that should be in your mind, that actually when we use radiopharmaceutical, we actually expose the human being to the radioisotopes, to the radiation that is toxic in nature, that is ionizing in nature. So it is not an easy way, just like a pharmaceutical utilization, कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं और आप सुबह दोपहर शाम खाते हैं और 5-5 दिन खाते हैं, 10-10 दिन खा लेते हैं, और there is no particular type of effect on your body. Definitely there is no radiation. Just an excretion process may harmful at some extent when they are excreted to the kidneys and liver. So वहाँ पे इनके लिए कुछ ना कुछ issues create कर सकती हैं और करती भी हैं, लेकिन वो issue इतना strong नहीं होता, इतना कह लें कि lethal नहीं होता. लेकिन इसको रेडियो फार्मास्यूटिकल को जब इस्तेमाल किया जाता है फॉर दी हेल्थ केयर पर्पसेस, वहाँ पे एक इशू ये भी होता है जहाँ पे रीनल फंक्शन का इशू हो सकता है, लिवर फंक्शन का इशू हो सकता है, जो कि आम फार्मास्यूटिकल की वजह से भी हो सकता है. तीसरा इशू जो इसकी वजह से हो सकता है वो आयोनाइजिंग इशू है कि रेडिएशन की वजह से. लिहाजा व्हेन आर यू आर गोइंग टू यूज सम रेडियो फार्मास्यूटिकल, इट इज़ वेरी क्रिटिकल, इट इज़ वेरी यू कैन से दैट सेंसिटिव मैटर. और आपको जब चूज करना है तो very sensitively you have to choose that radiopharmaceutical. So in order to develop a radiopharmaceutical for the purpose of diagnosis and for the purpose of treatment of human diseases, you should have to discuss, first of all, you should have to monitor, you should have to understand the ideal characteristic for a particular type of radiopharmaceutical. First of all, these are the some kind of easy availability. This is related to the you can say that treatment process. कि अगर तो easy availability है radio pharmaceutical की, then the treatment is would be very easy. Otherwise it would be very difficult to take an radio pharmaceutical from far away.
and then utilize at the center. So it is much difficult. You should have to make sure that the radiopharmaceutical easily available at the center. If that is easily available, then you can say that we actually using the radiopharmaceutical with great activity, with high activity. लेकिन अगर आप रेडियो फार्मास्यूटिकल इस्लामाबाद से मंगवा रहे हैं कि इस्तेमाल करने के लिए वहीं पे लेबल होती है, वहीं पे डेवलप होती है, और जस्ट यू आर वहाँ से मंगवाते हैं और लाहौर में या फैसलाबाद के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन दिस मूवमेंट अ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिविटी हैज़ लॉस्ट ड्यू टू दिस पैसेज ऑफ डिफरेंट 1 or 2 half lives. Other thing is that short effective half-life. That is very important, particularly in case of toxicity, radiotoxicity. You know that each radionuclide have a particular type of half-life. For example, just you know that is the technetium having a 6 hours half-life. So this is its physical half-life. Whenever it is present in a simple physical conditions in your laboratory in a particular type of container and vials, it will disintegrate, it will decay with the particular type of decay constant rate that would be 6 hours. So other kind of half-life, when actually you are going to administrate this radioisotope into the human body, then there is another half-life originate that is called biological half-life. So what is meant by biological half-life? Biological half-life mean the concentration, the time required to reduce the concentration up to half inside the human body. Okay, whenever a particular type of radiopharmaceutical reduced to its half of its initial concentration, that time is actually known as biological half-life. And how it is appear and how it is actually reduces to half of its initial concentration. You should know that there is different ways in order to reduce the activity inside the human body, because whenever a radiopharmaceutical is injected into the human body, so it will be excreted through the kidneys, it will be excreted to the face cells, it will be excreted through the aspiration पसीने के जरिए से. So there are three different ways through which the radioactivity and its metabolites are released from the body. So the time when a half of the concentration remain inside the body, that is known as biological half-life. So this is biological half-life. अगर ये भी कम होनी चाहिए for a particular type of radiopharmaceutical, if any type of radiopharmaceutical that is you are using for diagnostic purpose, for therapeutic purpose, और ये आपकी बॉडी के अंदर एक लंबे अरसे के लिए स्टे करती है, accumulate करती है, and have no much rapid excretion process. So in this regard, in this way, it will be more toxic. So it will be more ionizing inside your body. So it will be excreted very rapidly after and accumulate at a particular type of organ. Just if there is any other organ should be released, should be definitely you can say that released from the body very quickly. So in your स्क्रीन यू आर सीइंग दैट जिस तरह फिजिकल हाफ लाइफ का हमारा डिके कांस्टेंट है, इसी तरह से बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का डिके कांस्टेंट है. जस्ट लाइक हेयर डिके कांस्टेंट, बायोलॉजिकल डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693 divided by biological half life. So in one thing is it should be in your mind that the radioactivity in one way it is excreted from the body through the kidneys, through the urine, through the face cells and like that. ये एक वे है उसका वहां से एक्सक्रीट करने का. पर्टिकुलरली इक्वली इन पैरेलल इट इज आल्सो डिसइंटीग्रेट. ये डिसइंटीग्रेट भी हो रही बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली इमिट द रेडियो गैमा मिशंस. सो जब ये गैमा मिशन करते हैं, गैमा मीटर वहां से गैमा फोटॉन एमिट होते हैं, तो ड्यू टू आइसोमेरिक ट्रांजिशन इट एक्चुअली डिके. तो in 6 hours they also decay to half of its concentration. So there are two type of reduction of radionuclide inside the body. One is a biological half-life, other is a physical half-life. So effective half-life inside the human body that should be is equal to effective half-life decay constant by physical and decay constant by biological. So these are the two combination of these two give you effective half-life inside the body.
So in both way, the radioactivity reduce inside your body. One way is by decaying and other is by biological excretion process. So you know that this is, if we put the values of this is this effective decay constant 1 by, अब ये 1 कैसे आया, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, बिकॉज डेफिनेटली थोड़ा सा आपके लिए मसला होगा कि अगर मैं इसके ऊपर ये देखें 1/T, टी एक्चुअली क्या चीज़ है, ये शुड भी आपको इल्म होना चाहिए कि ये जो टी बी है ये हाफ लाइफ है, और सिमिलरली टी ई क्या है, ये भी हाफ लाइफ है। इसको स्मॉल टी और अलॉन्ग विद 1/2 लिख सकते हैं हाफ लाइफ को, जैसा कि ये है। और इसकी जगह आप ये अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप सिंपल कैपिटल टी अलॉन्ग विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रीफिक्स लिख सकते हैं। पी है फिजिकल है, बी है बायोलॉजिकल है, ई है इफेक्टिव है। सो जस्ट इन योर माइंड दैट दिस इज अनदर, so this is a 0.693. So this is 0.693, 0.693। अब सभी के ऊपर यही चीज आएगी क्योंकि ये इसकी वैल्यू ये आएगी लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट हर तरह से एक जैसे हैं और डेफिनेटली तीनों के ऊपर है, तो ये हमने इसको खत्म कर दिया। तो ये 1/T ई 1/T पी 1/, अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करें तो टी इफेक्टिव हाफ लाइफ वुड बी इक्वल टू टीपी इनटू टीबी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस TB. So in this regard, you would be able to calculate the half-life of any radionuclide inside the human body, inside the living body. So this is my dear a problem. You can calculate it. हम just इसको पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले. The physical half-life of indium is 67 hours. Okay. And the biological half-life of indium DTPA used for measurement of the glomerular filtration rate is 1.5 hours. Okay, what is meant by glomerular filtration rate? Glomerular mean kidneys have glomerular tubules. The filtration through these tubules is a measure of the renal function. So this half of the concentration, if you are using some concentration of indium DTPA, and this is a gold standard for the measuring of this radiopharmaceutical. Indium DTPA is a gold standard for the measurement of a renal function. If there is no any other issue, you are just treating a patient with some other disease, and there is a lot of medicines you actually giving to the patient, और इस वजह से क्या होता है कि इंसान के या पेशेंट के किडनी इफेक्ट करते हैं। इन किडनी के रीनल फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, जस्ट टू टेस्ट द रीनल फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट वाज सजेस्टेड दैट इंडियम DTPA स्कैन वाज कैरीड आउट। जितनी भी कंसंट्रेशन उसको दी जाती है तो उसकी मेजर ये किया जाता है कि इन हाउ मच टाइम इट एक्चुअली फिल्ट्रेट थ्रू द किडनीज। So greater the filtration, greater would be the renal function good. And अगर बाज़ का ऐसा होता है कि वो नहीं वहाँ से फिल्ट्रेट करते, वो रिटेन रहती है उसके अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर या लाइक दैट, तो इसका मतलब आपका रीनल सही तरह से काम नहीं करता। उसकी रीज़न ये क्यों ये कंपाउंड दिया जाता है कि दिस वाज द रैपिडली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। ये वो कंपाउंड है जो कि सबसे ज्यादा आज तक जितने भी रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं उनमें बेस्ट, इट इज द वन दैट इज बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द किडनीज, नॉट अब्जॉर्ब्ड। सो इन दिस रिगार्ड यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट इट। तो ये टेक्निक इफेक्टिव हाफ लाइफ इसकी 1.1 आवर जो है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है, 67 इसकी जो है ये फिजिकल हाफ लाइफ है। यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट इफेक्टिव हाफ लाइफ 1.47 आ जाएगी। सो अदर फार्मास्यूटिकल जो करेक्टरिस्टिक है फार्मास्यूटिकल की वो ये होनी चाहिए कि इसमें पार्टिकल एमिशन नहीं होनी चाहिए। What is meant by particle emission? Because you are using a radiopharmaceutical for the purpose of diagnosis. For diagnostic point of view, there is only one radiation that is being used, and in excellent way, that is a gamma radiations. If there is a beta radiation, if there is alpha radiation, it have a great energy and have ability to ionize your cells, destroy your cells. So it is more harmful for the human body and patient body. So it was make sure that there is no any type of radionuclide in your radiopharmaceutical that have ability
to release, that have ability to emit particles like that alpha or beta, because they are highly ionizing radiation. And so due to this reason, in diagnostic point of view, अगर आप ऐसी रेडियो फार्मास्यूटिकल बना रहे हैं जो कि डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस्तेमाल करनी है, तो then it is, you should have to make sure that there is no alpha particle emitter, there should be no any beta particle emitter. हाँ, अगर एक बात ये, अगर आप दिस रेडिएशन द रेडियो फार्मास्यूटिकल इज बीइंग यूज्ड फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस, अगर आप ट्रीटमेंट के हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो देन यू शुड हैव टू लेबल विद आइदर विद बीटा पार्टिकल एमिटर और gamma particle emitter. Other thing is that decay by electron capture or isomeric transition. Okay, in both process, because radionuclide emitting particle are less desirable, because अभी हमने स्टडी किया कि ना तो उसको अल्फा पार्टिकल एमिट होना चाहिए, ना ही उसे बीटा पार्टिकल एमिटर होना चाहिए, 100% उसे गैमा पार्टिकल एमिटर होना चाहिए, और गैमा पार्टिकल एमिटर भी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. समटाइम ऐसा होता है कि एक ही रेडियोन्यूक्लाइड एक से ज्यादा फोटोन ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सारा आप ये एक से ज्यादा से क्या मुराद है, वहां पे तो बिलियंस ऑफ रेडिएशन फोटोन एक्चुअली इमिटिंग बाय द रेडियोन्यूक्लाइड. यस, यू से एब्सोल्युटली राइट. इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है only the photon of one energy. There is no any photons that have, some have 140 kilo electron volt energy, some have 150 kilo electron volt energy, and some have 300 kilo electron volt energy. All the radiation photon should have only one type of radiation. अगर एक से ज्यादा रेडिएशन देंगे तो it should be in your mind that your analysis and your analytical process and software will be disturbed, and also imaging आएगी वो भी सही नहीं आएगी. बिकॉज जब आप एक ट्यूब के अंदर आपकी जो फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है और एम्पलीफिकेशन होता है स्पेक्ट कैमरा के अंदर या गैमा कैमरा के अंदर, देयर शुड बी, दैट इज एक्चुअली डिजाइंड विद द only one kind of radiation photon. If there is a more than one kind of radiation photon, one is of 140 kilo electron volt and other is 511 kilo electron volt, then both will be disturb the structure and image of the body. So it should be, so it is only way कि आप आइसोमेरिक ट्रांजिशन के जरिए से इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस. अब इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस ये होता है कि एनी इलेक्ट्रॉन विच एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी पेनल्टीमेट शेल, कि जो कि न्यूक्लियस से आगे शेल वो होता है, उससे वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से दैट इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कंबाइन विद दैट ऑफ, यू कैन से दैट प्रोटॉन टू मेक अ न्यूट्रॉन इनसाइड द बॉडी. ये ऐसे प्रोसेस में होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन इन या प्रोटॉन इन एक्सेस होते हैं, तो ड्यू टू दैट रीजन electron is captured from the outer shells, and that proton combine with that electron to form a neutron. So in this regard, some kind of you can say that gamma radiation emission occur, and other way of gamma radiation emission is isomeric transition. So both are actually the process in which we gain the gamma radiation. So it should be in your mind कि अगर आपने gamma radiation emission वाला कोई भी रेडियो न्यूक्लाइड इस्तेमाल करना है रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर, उसकी जो एनर्जी है वो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान होनी चाहिए. अगर इससे ज्यादा होगी तो इट इज मच हार्मफुल, और 30 से अगर कम होगी तो इट विल नेवर बी डिटेक्टेड बाय द सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर. हाँ, एक और बात, अगर एनर्जी इससे कम होगी तो सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर इसे डिटेक्ट नहीं करेगा. अगर इससे ज्यादा होगी तो सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर फ्रेजाइल होने का खतरा होता है, बिकॉज सोडियम आयोडाइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक शेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे नॉट हैव एबिलिटी टू ऑफ, जो एनर्जी डिफरेंस उनके दरमियान में होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सके. आयोनाइजेशन होने का खतरा होता है, और वहाँ पे अगर आयोनाइजेशन हो तो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल प्रोसेस for the imaging purposes. So there should be energy difference between 30 to 3 जो इलेक्ट्रॉन जो गैमा फोटॉन है, जो उसकी जो एनर्जी रेडिएशन इमिशन हो रही है, that should fall between these two extremes. One is 30 kilo electron volt and other is 300 kilo electron volt. Okay, I think you know understand by this process. सो दिस इज 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये बॉडी के अंदर ही आमतौर पे रहता है.
इसे वहीं पे जज्ब कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे पहुंच भी जाए तो ये इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। लेकिन अगर 300 मोर देन 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो ये वहीं से पास कर जाता, बिकॉज जो एनर्जी गैप होता है वो इस एनर्जी का हामिल ही नहीं होता। आपको पता होना चाहिए दी जो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस दैट आर क्वांटाइज्ड having a particular type of energy difference and absorb particular amount of energy. If there is in between that type of energy of the gap that are not being used by the atom or element, so if it is more than 300 kilo electron volt, it would be easily passed through the sodium iodide detector, and no more it will be detected at its end. So this is another way. अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल जो बहुत अहम करेक्टरिस्टिक है, मैंने पहले भी जिक्र किया अभी शुरू में कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन योर माइंड दैट के जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है रेडियो फार्मास्यूटिकल की, दैट शुड बी शॉर्ट इनफ, इफेक्टिव शॉर्ट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो बहुत अहम है, ये किसके लिए हम कहते हैं कि शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए जो अकोमुलेट नहीं हुई पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज सेल्स के ऊपर, अगर वो अकोमुलेट नहीं हुई एंड वांडरिंग इन द बॉडी थ्रू ब्लड, सो इट रैपिडली शुड सक्रीट थ्रू द सिस्टम। अगर ये सक्रीट नहीं होती, बॉडी के अंदर रिट्रेट करती रहती है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, तो इट विल इम्पोज वेरी सीरियस थ्रेट टू द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इस हवाले से ये सीरियस थ्रेट उसको दे सकती है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर, पर्टिकुलर आर्गन के ऊपर जाके कह लें कि अकोमुलेट हो गई है, और इसका मतलब यह कि टारगेट के ऊपर उसकी कमोलेशन बहुत ज्यादा, और टारगेट नॉन टारगेट जो टारगेट नहीं है बॉडी, वहां पे इसकी कमोलेशन नहीं है, तो इन दिस रिगार्ड इसकी जो रेशियो है वेरी हाई है टारगेट टू नॉन टारगेट एक्टिविटी, यानी कि टारगेट के ऊपर तो बहुत ज्यादा और नॉन टारगेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्यू टू दिस रीजन उसकी रेशियो फिर बहुत ज्यादा बन जाएगी। यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं ये कहता हूं कि जी टारगेट के ऊपर तो कह लें कि ये 6.2 आई है, और नॉन टारगेट के ऊपर 0.1 आई है या 0.5 आई है, तो रेशियो कितनी बन जाएगी, रेशियो बनेगी 12.4। तो ये बहुत ज्यादा हो गई। और जितनी नॉन टारगेट के ऊपर बढ़ती जाएगी, फर्ज करें नॉन टारगेट के ऊपर ये आ गई है 5 आ गई है, तो टारगेट के ऊपर कितनी है 6.2 आई है, तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग होगी 3। तो ये बहुत, इससे बहुत ज्यादा कम आ गई। तो जितनी नॉन टारगेट के ऊपर रेशियो एक्टिविटी कम आएगी, उतनी हाई और टारगेट के ऊपर ज्यादा आएगी, तो रेशियो बढ़ेगी। और ये इट इज गारंटी दैट द रेडियो फार्मास्यूटिकल इज बेस्ट अगर उसकी टारगेट टू नॉन टारगेट रेशियो बहुत हाई होती है। तो ये एक चीज जो बहुत अहम है, ये आप लोगों को इल्म होनी चाहिए इस चीज का भी। ओके, अगला जो करेक्टरिस्टिक है इसकी वो ये है, ये जर्नल कुछ कंसंट्रेशन है डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइन करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल, तो जर्नल जो कंडीशंस होती हैं, या जर्नल जो हमारे माइंड में होता है कि ऑन व्हाट वे वी एक्चुअली आर गोइंग टू डिज़ाइन अ रेडियो फार्मास्यूटिकल, किस तरह की हम रेडियो फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन करनी है और किस पर्पस के लिए करनी है, दैट शुड बी इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में पहले से ये सारे प्रोसेस होंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू डिजाइन अ न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल इन अ बेटर वे। इफ you don't know about any type of mechanism and how radio pharmaceutical actually work and what type of mechanisms are there inside the body through which a particular type of molecule actually working, so it is much difficult for you people के आप उसको डिजाइन करें, उसको डेवलप करें, ये आपके लिए एक कह लें कि बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी बात। लेकिन अगर you know about all type of mechanism, all type of processes, all type of development issues, then you would be able to design a good radio pharmaceutical. So first of all, there is a passive diffusion. Passive diffusion, there is two type of diffusion. One is active diffusion and other is passive diffusion. एक्टिव डिफ्यूजन ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप किसी जगह जाते हैं और आपको वहां से घुसने ही नहीं कोई देता, तो ये तो इट इज मच डिफिकल्ट एंड वेरी शेमफुल फॉर यू कि आप जाएं और आपको घुसने ना दें। तो आप फिर वहां पे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं और किसी अपने ऐसे बंदे का इंतजार करते हैं जो यहाँ से घुस जाए लेकिन वो आपका भी वाकफ हो, तो आप उस वहां पे उनके साथ सलाम दुआ लेंगे, उसका हालचाल पूछते पूछते उसके साथ ही अंदर दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा दिस इज पैसिव डिफ्यूजन, कि आपने अपनी ताकत के तहत वहां से दाखिल नहीं हुए, ना ही अपनी
यानी कि Laxlac के तहत, but you actually taking the support of some other person or some other thing. So this is called passive diffusion. So there are so many. So there are different type such type of processes that actually occur in the formation of radiopharmaceutical. Sometimes कुछ ऐसी चीजें होती है वो डायरेक्टली वहां से पास नहीं कर सकती, डिफ्यूज नहीं कर सकती, तो उनको पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से यानी कि थ्रू सम अदर इनडायरेक्ट वे यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डिफ्यूज इनटू दैट सिस्टम. सो इस हवाले से अगर आप देखें तो टेक्नीशियम डीटीपीए इन ब्रेन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये पैसिव डिफ्यूजन के जरिए से वहाँ से मूव करता है. सिमिलरली डीटीपी एरोसोल्स हैं, जीनोन एरोसोल्स हैं इन वेंटिलेशन इमेजिंग कि इन फर्दर अगर इन्हीं को हम एरोसोल की फॉर्म में लें तो आप यू कैन यूज फॉर द लंग्स इमेजिंग. वेंटिलेशन इमेजिंग से मुराद लंग्स का इमेजिंग कि आपने लंग्स की स्ट्रक्चर को चेक करना है कि लंग्स के जितने भी कैपिलरीज हैं एक्टिवली वर्क कर रही हैं और नहीं, तो इस हवाले से ये की जाती हैं. इन डीटीपीए इस सिस्टेनोग्राफी के लिए भी ये इस्तेमाल, सिस्ट जो कह लें कि जो आपके बॉडी के अंदर सिस्ट बनती हैं उनकी सिस्टेनोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं मुख्तलिफ, यानी कि इस तरह से ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है पैसिव डिफ्यूजन के जरिए. जो पैसिव डिफ्यूजन है इन तमाम मैकेनिज्म के अंदर इस्तेमाल होता है, ब्रेन के लिए, वेंटिलेशन के लिए और सिस्टेनोग्राफी के लिए. एक होता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस. इसके अंदर जो अपटेक ऑफ टेक्नीशियम फास्फेट है कॉम्प्लेक्स इन बून, ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस इस हवाले से होता है कि ये हम फास्फेट को टेक्नीशियम के साथ लेके जाते हैं और फास्फेट वहाँ पे इसको टेक्नीशियम को साथ फास्फेट बिकम अ पार्ट ऑफ बून, बून का हिस्सा बनता है और ये वहाँ पे आयन एक्सचेंज कर देता है. फास्फेट वहाँ पे टेक्नीशियम को रिलीज कर देता है. ओके, तो ड्यू टू दिस रीजन अपटेक ऑफ फास्फेट कॉम्प्लेक्स इन बून, तो वहाँ पे फास्फेट ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है वहाँ पे. तो इस तरीके से भी इसके हम स्टडी करते हैं. अब अगर ये कहें कि जी हमने ये फास्फेट की क्यों इस्तेमाल किया, तो फास्फेट द ओनली लाइगेंड विच हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज, ठीक है, इन बून. सो बून की जो बून पैलिएशन के लिए डायग्नोज करते हैं, आपको पता है, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि सम टाइम इन कार्सिनोजेनिक डिजीजेज, जब इंसान को कैंसर या ट्यूमर या लाइक दैट डिजीज होती हैं, तो सबसे जो हार्मफुल पेन होती है, सबसे जो सख्त पेन होती है वो हड्डियों की पेन होती है, हड्डियों में दर्द होती है. वो ऐसे वो क्यों होती है, इसमें उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें से बहुत सारा फास्फेट या लाइक दैट जितने भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ से बहुत तेज़ी से एक्सक्रीट होती हैं हड्डियों से, और जिसकी वजह से हड्डियाँ भी इसकी फ्राइजेल हो जाती हैं और बहुत नाजुक हो जाती हैं. तो ये जो कंपाउंड है डीटीपी सॉरी फास्फेट या लाइक दैट एक और कंपाउंड है, उसको जो इस्तेमाल ये एमएमए नहीं सॉरी एक और कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं, ये डीटीपी भी इस्तेमाल होता है लेकिन फास्फेट कंपाउंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एक और भी हाँ मैग 3 सॉरी मैग 3 MAG3, जिसमें मैथ्योनिन, एनालिन एंड ग्लाइसिन 3 ये पेप्टाइड टाइप है, ये इस्तेमाल किया जाता है टेक्नीशियम के साथ लेबल करके, और ये हड्डियों की पैलिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, बोन पैलिएशन इमेजिंग के लिए. तो वहाँ पे फिर जब ये उसको रेडियो फार्मास्यूटिकल देते हैं तो उसका जो यू कैन से दैट कि जो दर्द होता है, पेन होता है, वो ख़त्म होता है. तो दिस इज़ अ वेरी ओनली वन ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द a removal of pain of bones through radiopharmaceuticals. So this is an ion exchange process. कैपिलरी ब्लॉकेज के को भी हम स्टडी कर सकते हैं इसके हवाले से, यानी कि टेक्नीशियम मैक्रो एग्रीगेटेड एल्बुमिन, एल्बुमिन यू नो इज मैक्रो एग्रीगेटेड एल्बुमिन. ये आपको पता है कि ब्लड का हिस्सा है एल्बुमिन, उससे इसको लिया जाता है एक्सट्रैक्ट करके, इसको लेबल किया जाता है टेक्नीशियम के साथ. इट इज़ गिवन टू द पेशेंट एंड टू चेक द कैपिलरी ब्लॉकेज इफ देयर इज व्हाट टाइप ऑफ कैपिलरी ब्लॉकेज आर देयर इन द बॉडी. तो दिस इज another process to study through radiopharmaceutical. Phagocytosis process है removal of technetium sulfur colloidal particle by the reticulum endothelial cells in the liver.
स्प्लीन एंड बोन मैरो। लिहाजा यहाँ पे क्योंकि ये जो फैगोसाइटोसिस है, ये फाइगोसाइट्स बनती हैं, ये ज़्यादातर लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो के अंदर बनते हैं। लिहाजा उनकी स्टडी के लिए सल्फर लेबल टेक्नीशियम हम इस्तेमाल टेक्नीशियम लेबल सल्फर इस्तेमाल करते हैं। एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है कि आप सिंपल आयोडीन कोई भी इनडायरेक्ट मालिक्यूल आप इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्ट आप रेडियोन्यूक्लाइड आपने लिया, जैसे आयोडीन है, इसको किसी के साथ लेबल नहीं करते, ये बराह रास्त थायराइड में चला जाता है, तो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या फिर टेलोरियम है, थैलियम है, ये भी अपटेक इन मायोकार्डियम, ये भी बराह रास्त जाता है। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो नीड ऑफ इनडायरेक्ट, कि कैरियर मालिक्यूल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू label with some type of carrier molecule, you should have to use directly a radioisotope into the body, inject करते हैं, वो body के अंदर बराह रास्त अपने टारगेट पे जाता है। These are the only two radioisotopes that have no need to label it with some kind of pharmaceutical agent. It is directly injected, individually injected, and have ability to accommodate at a particular type of organ inside the body. 6 है सेल सिक्विजेशन प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, रिसेप्टर बाइंडर। एक ये जो हाँ सेल सिक्विजेशन एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर ये होता है कि हीट डैमेज जो होते हैं रेड ब्लड सेल, उनकी स्टडी के लिए स्प्लीन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्लड स्प्लीन आपको पता है, आपकी जो पित्ता है या लीवर है, ये दो ऐसे आर्गन हैं जो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो आपसे पूछना था, एग्जाम्स का तो कंफर्म है ना कि 29 से है, या इसमें अभी कोई मीटिंग होनी है? अभी तक मुझे भी आज इशफाक नहीं बताया, सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो पता चलेगा। मैं तो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं मैं गया। ठीक है सर, फिर हमें फाइनल सिलेबस भी बता दें प्लीज। जी इंशाल्लाह कल मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सिलेबस। ठीक है जी श्योर। यस तो we are studying about the different mechanism through which radiopharmaceutical actually working. तो 7 सेल सिक्विजेशन मेन। जी बच्चे हेलो ओके ओके ठीक है ठीक है। सो 6 नंबर जो प्रोसेस है वो सेल सिक्वेस्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है कि जो हीट डैमेजिंग होती है ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय द स्प्लीन, तो उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ये बहुत शेल्डम इस्तेमाल होता है इन पर्टिकुलर कंडीशंस व्हेन एवर सम काइंड ऑफ आपका स्प्लीन या लीवर काम नहीं कर रहा होता, तो ऐसे में ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं कि थ्रू ये एक स्कैन करवाया जाए, ताकि हमें ये पता चले कि स्प्लीन और आपकी जो लीवर है हाउ मच एक्चुअली वर्किंग फॉर इट्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन टू प्रोड्यूस द ब्लड। अच्छा, अब बाकी जो ये 3 प्रोसेस आ गए, जो तीनों आ रहे हैं, ये वो प्रोसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इन दी वर्ल्ड ऑफ रेडियोफार्मास्यूटिकल, इन डायग्नोसिस एंड इन थेरेप्यूटिक पर्पसेस। Next is metabolism. You know, there are every type of chemical process inside the body carried out through some kind of metabolism, some kind of metabolic processes. So it is a long chain of processes right from start to end. There is a multiple type of stages. There is a multiple type of formations of different compounds and different factors that actually continuously move from one step to other step to produce a particular type of target material. So this is a broad area, broad route in order to target by radiopharmaceutical, by pharmaceutical, by medicine, by drugs. You know, अभी जितने भी प्रोसेस होते हैं मिसाल के तौर पे कि आपका ये जो हार्मोनल सिस्टम है,
कि इंसान के अंदर शुगर के मरीज हैं, उनको इंसुलिन दी जाती है। इंसुलिन इसलिए दी जाती है, हार्मोन वहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए से कैरीड आउट प्रोसेस होता है। सो इन दिस रिगार्ड द रेडियो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस related to different type of diseases and what type of chemical we have to label in order to detect the rate of that metabolism। अगर वो रेट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि सच टाइप ऑफ प्रोसेस वो रैपिडली इंसान की बॉडी के अंदर हो रहा है। और सम टाइम ऐसा भी होता है उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोकने के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड वाज सिंथेसाइज, और जिसे इनहिबिटर का नाम दिया जाता है, और वो प्रोसेस वो फार्मास्यूटिकल अप्लाई होती हैं इन ऑर्डर टू फिक्स द डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो सिमिलरली सबसे जो अभी तक वेल नोन रेडियो फार्मास्यूटिकल जो मंजर आम पे मौजूद है पेट इमेजिंग के हवाले से, वो FDG है, फ्लोरोडॉक्सल ग्लूकोज, डीऑक्सी फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज इसको नाम दिया गया है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिटेक्ट करता है, पर्टिकुलरली जो ग्लूकोज से रिलेटेड प्रोसेस होता है उसको। तो ये मायोकार्डियल एंड ब्रेन टिश्यूज की जो स्टडी है इसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि ब्रेन इमेजिंग के लिए ये कंपाउंड दे के ब्रेन का स्कैन किया जाता है कि आपका ब्रेन बिल्कुल सही काम कर रहा है और कोई ऐसा इशू तो नहीं है। और सिमिलरली मायोकार्डियल दिल के इमेजिंग के लिए यही कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर द बेस्ट वन कंपाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन हार्डर टू डिटेक्ट द मायोकार्डियल फंक्शन एज वेल एज ब्रेन फंक्शंस। अगला जो प्रोसेस है वो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोसेस के जरिए से रेडियो फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल है। अब रिसेप्टर्स बाइंडिंग क्या होती है? अल्लाह का देखें निज़ाम ये है, बहुत ज़बरदस्त और हसी है, सुबहान अल्लाह के देर आर ईच टाइप ऑफ कैंसर इनसाइड आ बॉडी। जब रूनमा होता है तो वो सेल जिसको जो कैंसर में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर म्यूटेशन होती है और वो कैंसरस सेल्स बनता है, उसके सरफेस के ऊपर कुदरतन रिसेप्टर अपीयर होते हैं। यानी कि आम हालात के ऊपर सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं होता, इक्का दुक्का या चंद एक रिसेप्टर्स होते हैं। मे बी आई हैव डिस्कस विद यू इन वेरी अर्ली लेक्चर। लेकिन जब वो डिजीज सेल बन जाता है तो नंबर ऑफ सेल्स उस रिसेप्टर्स उसकी सरफेस के ऊपर डेवलप होते हैं। जैसे कि आप ये ऐसा समझ लें, इजी आपके लिए हो जाएगा कि अगर आपके पास एक कपड़ा है और उसके ऊपर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, लेकिन अगर टावल हम ले लें, तौलिया जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारे उभार होते हैं। तो उभारों को आप जस्ट यू कैन से दैट इट इज रिसेप्टर्स। और एक आम कपड़े के ऊपर कोई भी सच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स नहीं होता, बट इन केस ऑफ टॉवल देयर इज सो मेनी रिसेप्टर्स एट द सरफेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ। तो इसका मतलब ये दिस इज अ सिमिलर, हम सिमिलरिटी रखते हैं सेल्स, हेल्दी सेल के लिए और डिजीज सेल के लिए। हेल्दी सेल के ऊपर साइड टाइप ऑफ देयर इज नो साइड टाइप ऑफ रिसेप्टर, बट इन केस ऑफ इफ देयर इज अ डिजीज सेल, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ कैंसर सेल्स, सो साइड टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर रिसेप्टर्स अपीयर होते हैं। अब इन रिसेप्टर्स के लिए बहुत सारे कंपाउंड इंटरेक्शन रखते होते हैं, पर्टिकुलरली हार्मोन्स। जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो इन्हीं रिसेप्टर के जरिए से वर्क करते हैं। वो हार्मोन जाता है उस सेल्स की सरफेस के ऊपर, इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और जब बाइंडिंग करते हैं तो जब बाइंडिंग हो जाती है, अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और वो उस हार्मोन को इनगल्फ कर दिया जाता है, यानी कि वो रिसेप्टर उसे लेके अंदर चला जाता है। तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स वाज डेवलप। अब इसमें बहुत सारे कंपाउंड डेवलप किए गए हैं, एक नहीं। देयर इज अभी मैं आपको शायद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अभी आज की दुनिया के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो थेरापी है उसमें यह किया गया है कि एक हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन, जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, ये ग्रोथ फैक्टर हार्मोन है। इसका ये तो वैसे तो आमतौर पे ये 34 अमाइनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन देयर इज ओनली 8 अमाइनो एसिड्स वाज चूजन, और उसका एनालॉग बनाया गया है जो कि सिमिलर इंटरेक्शन रखता है रिसेप्टर के लिए।
सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर्स अपीयर होते हैं न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के ऊपर। जितने भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हैं उनकी सरफेस के ऊपर सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर्स अपीयर होते हैं। ये जो सोमैटोस्टेटिन रिसेप्टर्स हैं हैव एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अब जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन है ये 34 अमीनो एसिड के लिए के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर बॉडी से निकालें तो इट इज माइट डिफिकल्ट, तो ये बहुत महंगा पड़ता है। लिहाजा क्या किया गया कि 8 अमीनो एसिड के ऊपर मुश्तमिल जो इन्हीं अमीनो एसिड की डोमेन है इन्हीं से ली गई है उसके ऊपर मुश्तमिल सिंथेसाइज की हैं जिसे ऑक्टोटेट कहा जाता है। इस ऑक्टोटेट के साथ लुटीशियम को लेबल किया गया है थ्रू मैक्रोमॉलिक्यूल दैट इज नोन एज डोटा। डोटा एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, उसके जरिए से लुटीशियम को इसके साथ लेबल किया। अब लुटीशियम को लेबल करके इस 8 अमीनो एसिड के एनालॉग ऑफ सोमैटोस्टेटिन के साथ बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट किया जाता है तो इट हैव 100%, नॉट 99%, नॉट 99.9%, बट 100% अफिनिटी फॉर दैट रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स के लिए जो न्यूरोएंडोक्राइन प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर यानी कि मुक्त न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के ऊपर हो जाते हैं। तो उस हवाले से ये और जब उसके साथ बाइंड करते हैं तो उन कैंसर सेल्स के अंदर चले जाते हैं थ्रू सिग्नलिंग। जब अंदर जाते हैं तो बीटा रेडिएशन पर्टिकुलरली कंटिन्यूसली इमिट हो रही है, वो सेल की मशीनरी को डीएनए को डैमेज कर, जो डीएनए के दौरान मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेसिस के दौरान बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर्टिकुलरली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय होता है नो मोर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एंड नो मोर माइटोसिस अकर इनसाइड द दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर सेल, एंड वो कैंसर सेल की जो ग्रोथ है रुक जाती है और आपकी जो डिजीज वहां पे ही स्टॉप हो जाती है। तो ये एक द बेस्ट एवर थेरापी वाज बीइंग एक्सरसाइज इन क्लिनिकल सेटअप्स, जो कि इसका कोई नेमल बदल नहीं। अगर हम कहें कि जिसका नेमल बदल, नो नेमल बदल। और अभी एक रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, इसके ऊपर मेरे पेपर भी हैं, पीएसएमए प्रोस्टेट जो है मेम्ब्रेन एंटीजन मेम्ब्रेन, ये एक कह लें कि एंटीजन है, इसको लेबल किया, ये एंटीजन एंटीबॉडी नीचे आ रहा है प्रोसेस, उसमें उसको भी लेबल किया गया है एक्टिनियम के साथ, और वो भी इसी थेरेपी के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए दी गई है। दैट इज वेरी बेस्ट थेरेपी एज एवर। तो इस तरीके से ये एक बेस्ट नॉन कह लें कि स्ट्रेटजीज है फॉर द डायग्नोसिस एज वेल एज फॉर द थेरेपी ऑफ डिजीजेस। तो कीमोटैक्सिस ये कह लें कि एक ल्यूकोसाइट्स के साथ, ये कीमोटैक्सिस एक ऐसा पेप्टाइड है जो कि बैक्टीरिया के जरिए से प्रोड्यूस होता है और हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी फॉर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट के साथ ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखता है। तो जैसे ये पेप्टाइड वहां पे ज्यादा मौजूद होगा जहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन होंगे, तो ल्यूकोसाइट को जब लेबल किया जाता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो जहाँ पे बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स कीमोटैक्सिस भी प्रोड्यूस हुआ होता है, ये उसके साथ लेबल हो जाता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है, और जो बाइंड करके वहाँ पे सिग्नल देता है कि मैं यहाँ पे अकोमोडेट किया हूँ। तो इन दिस रिगार्ड वी वुड बी एबल टू सी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट यू नो मच बेटर इन दिस इरा, यू नो कि आजकल हर बंदा एंटीबॉडी 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 कर रहा है कि मैंने वायरल आता है और वायरल उसके नतीजे में एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करके उसका खात्मा करती है। तो नो डेज दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीजन जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीबॉडीज इस्तेमाल की फॉर लेबलिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू लोकलाइज ऑफ ट्यूमर्स, क्योंकि हर ट्यूमर के लिए एक एंटीजन होता है। अगर हम एंटीबॉडी को लेबल करेंगे तो वो वही सी एंटीजन के ऊपर जाके लेबल बाइंड करेगा और बाइंड करके उसको ख़त्म करेगा या उसको डिटेक्ट करेगा कि ये कहाँ पे मौजूद है। अभी जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं या नहीं बन चुकी, तो एंटीबॉडी क्यों बनती है? जब कोई एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा बॉडी का जो पार्ट है, बाहर से कुछ चीज अंदर दाखिल होती है तो उसके नतीजे में एक एंटीबॉडी बनती है। वो एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पैथोजन या वायरस के ऊपर जो एंटीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करती है और उसको फर्दर काम करने नहीं देती, ये कम्प्लेक्स काम करने नहीं देता। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एंटीबॉडी को लेबल किया गया और एंटीबॉडी को लेबल करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि पता चले कि ट्यूमर
किस जगह कितनी मकदार में मौजूद है। तो ये जर्नल कुछ प्रोसेस हैं, एक मैकेनिज्म है थ्रू विच आर रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्चुअली वर्किंग। नॉट ओनली रेडियो फार्मास्यूटिकल, बल्कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल वो भी इन्हीं प्रोसेस के जरिए से वर्क करती हैं। बट यू हैव टू सॉर्ट आउट व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल have what kind of mechanism of action inside the body। अगर आपको वो पता चल जाए, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कहते हैं फलां आपको फलां डिजीज है और आपको ये पता चल जाए कि उस डिजीज के अंदर कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल वी कैन यूज इन ऑर्डर टू इनहिबिट दैट डिजीज, यू कैन यूज दैट मॉलिक्यूल फॉर अ रेडियो फार्मास्यूटिकल पर्पस। आप उसको लेबल करके उसकी विजुअलाइजेशन दे सकते हैं कि कितनी मकदार में वो डिजीज है, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। आपने ट्रीटमेंट कर दी, डिजीज कम होगी, उन मॉलिक्यूल को लेबल करें, दोबारा उसके अंदर इंजेक्ट करें, देखें कि अब कितनी सिग्नल आ रहे हैं। अगर कम हो गए पहले से, इसका मतलब डिजीज कम हो गई है। अगर ज्यादा हो गए तो इसका मतलब डिजीज ज्यादा होगी। तो फॉलो अप के लिए, डायग्नोसिस के लिए, थेरेपी के लिए दिस प्रोसीजर इज मच मच बेटर। और ये चीज आपको एक और मैं बात बता दूं कि इसलिए इट इज द बेस्ट वन प्रोसेस बिकॉज जितने भी हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, पर्टिकुलरली क्लिनिकल, जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं, मैंने शायद आपसे बताया था कि ये नॉट मोर देन 33% एक्यूरेट। इससे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन नहीं देते। 33% से ज्यादा एक्यूरेसी यानी कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते। यानी कि आपको ये तो बता देंगे कि इन्फेक्शन इज देयर, बट ये आपको नहीं बताएंगे कि इन्फेक्शन बॉडी के अंदर कहाँ मौजूद है। और रही बात आपके इंस्ट्रूमेंटल जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, लाइक दैट सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, इनको रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, ये आपको 100% बता देते हैं कि कहाँ पे इशू है। लेकिन इनसे काम लेने के लिए जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज होनी चाहिए, कि जिस टिश्यू के अंदर, जिस ऑर्गन के अंदर डिजीज है, उसकी शेप चेंज हुई होनी चाहिए। अगर शेप चेंज नहीं है, वो नॉर्मल हालत में है, तो इट वुड नॉट बी एबल टू डिटेक्ट अ डिजीज। ये कहेगा ये नॉर्मल है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर की अगर नॉर्मल है तो इट विल नेवर गिव यू एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द सेल। ये सेल से लेके ऑनवर्ड मॉलिक्यूलर इमेजिंग का नाम दिया जाता है, यानी कि सेल से भी नीचे चले जाते हैं। ये कहता है कि जहां मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को मसला है, उस मॉलिक्यूल को जाके ये हिट कर देता है। तो दिस वाज द रीजन के दिस। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है कि एक इंटेलिजेंट माइंड की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है आपकी बेहतरीन फैसिलिटीज की जरूरत है। अगर ये तीनों चारें ट्रायंगुलर, इंटेलिजेंट माइंड एंड बेहतरीन बेस्ट फैसिलिटीज एंड द वर्किंग एरिया फैसिलिटेशन, जो वर्किंग एरिया है, एनवायरनमेंट है, दैट इज दीज थ्री फैक्टर्स आर बेस्ट वन, देन देयर इज नो एनी थिंग लाइक दैट, कि इससे बढ़कर फिर कोई भी नहीं होती कि जो कि एक डिजीज के लिए बेस्ट ऑप्शन, डायग्नोसिस के लिए या थेरेपी के लिए बेस्ट ऑप्शन हो। So dear student, I think I have know a lot of things I have discussed with you today. Tomorrow I am also will discuss some of the factor जो नई रेडियो फार्मास्यूटिकल डिजाइन करने के लिए हमें मद्देनजर रखना चाहिए, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद कल ही मैं एक और चीज़ आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल जो कि बीइंग यूज्ड हो रही हैं। और फिर परसों के लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू some sort of quality control analysis, कि what type of quality control analysis we actually use, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ताकि आपको पता हो कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस है, जो एनालिटिकल रेडियो, इसको रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, तो ये हाउ मच इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड like that. So any question if you have in your mind, please let me. सर जी रेडियो न्यूक्लाइड enough यूज नहीं करते हैं हम लोग। जी आवाज नहीं आई बेटा। सर जो रेडियो न्यूक्लाइड हम यूज करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर, सर वो शॉर्ट लाइफ होना चाहिए, एक्सपायर कम से श्योर, कम हो। बिल्कुल डेफिनेटली उनकी शॉर्ट लाइफ होनी चाहिए। इफेक्टिव जो हाफ लाइफ है शुड भी शॉर्ट होनी चाहिए। ये मैंने दो तरह की होती है, एक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ और एक फिजिकल हाफ लाइफ। फिजिकल की आपको पता है कि ज्यादातर टेक्नीशियन इस्तेमाल करते हैं, वो 6 आवर्स होती है।
और सिमिलरली बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ये है कि हाउ मच इट इज एक्चुअली रिलीज्ड, इन व्हाट टाइम एक्चुअली इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, कितनी तेज से ये जी रिलीज होता है, सर ये शॉर्ट दोनों। लाइफ होनी चाहिए, लेकिन सर वो जो जी 5 चैप्टर के उसी के सेकंड पेज पे जो लिखा हुआ है कि आइडियल का उसके बारे में लिखा हुआ है सर, उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो चैप्टर जरा बैक करके दिखाएंगे जी जी मैं बताता हूँ। सेकंड पेज पे। जी ये सर 5 चैप्टर का सेकंड पेज, अच्छा 5 चैप्टर, 686 है आई थिंक पेज। अच्छा अच्छा 86 है, 86 तो नहीं है ये तो, जी इससे ऊपर है। ऊपर है। जी ये है 5 चैप्टर, ये सेकंड जी पेज है। सर इसका सेकंड पेज जो है जी सर ये यहाँ पे सेकंड उन्होंने पेज है। लिखा हुआ है, कहाँ पे है? यहाँ पे a data nuclide should decay to a stable and very long, second last paragraph जो है Wrapper to use and give a high yield of the daughter nuclear, सर second paragraph. An added सर radionuclide यही जो generator should डाटा be न्यूक्लियर daughter nucleide repeatedly and reproducible. सर इससे नीचे डाटा न्यूक्लियाइड शुड डिके टू स्टेबल एंड वेरी लॉन्ग लाइफ न्यूक्लियाइड। इससे नीचे कहाँ पे? The generator सर ये जी ये नीचे नीचे should be free from change. Other extra, the daughter nucleide should decay to a stable or very long जी lived सर ये nucleide so that the radiation does not to the patient is minimal. अच्छा यस, रेडिएशन डोज। अब बात सुने, उसने ये कहा है कि हम एक्चुअली बात ये जहन में रखें कि डाटा न्यूक्लियाइड शुड बी डिके। अब आपके जो जनरेटर के जरिए से जो डाटा न्यूक्लियाइड इस्तेमाल हम करें वो टेक्नीशियम 99M है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जब ये जी डाटा न्यूक्लियाइड जो हमने इंजेक्ट किया है मोलिब्डेनियम से लेके शुड बी डिके टू अ स्टेबल और वेरी लॉन्ग लाइफ न्यूक्लियाइड, या तो वो ऐसे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाए जो कि स्टेबल हो, स्टेबल से मुराद है उसमें से कोई रेडिएशन इमिट ना हो, या फिर अगर रेडियो एक्टिव हो तो उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। वेरी लॉन्ग लिव्ड, वेरी लॉन्ग लिव्ड का मतलब यह कि हजारों या लाखों सालों के लिए उसकी हो, उसका ये मतलब है। सर आगे लिखा है द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट इज मिनिमल, मतलब सर जो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं वो रेडियो न्यूक्लाइड होते हैं उसका एक्सपोजर कम होता है, और यहाँ पे उन्होंने जो लॉन्ग लाइव्ड लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ओके ओके ठीक है। अब पेशेंट के अंदर ये एक्चुअली क्या इमिट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन इमिट करके जी क्या बना रहा है, ये बना रहा है टेक्नीशियम स्टेबल 19, ठीक है। अब हमारे जी पास ये क्लियर, इसकी मदद से हमने क्या किया, डायग्नोज कर लिया इस गैमा रेडिएशन की वजह से। अब ये जो है इसको शुड बी, अब ये जो चीज है ये डाटर है, ये डाटर जी न्यूक्लियाइड है ये वाला, जी इट शुड बी डिके, इसको डिके होना चाहिए टू अ स्टेबल, स्टेबल के फर्ज करें हम इसके कहते हैं ये रुदीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ये स्टेबल में हो जाए जी कन्वर्ट रुदीनियम, जी या फिर वेरी लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियाइड या टेक्नीशियम 99 में जिसकी हाफ लाइफ आपको पता है 5 × 10 रेज़्ड पर 5 फाइव इयर्स है, 2 जी 10 × 5 इयर्स है, और ये वेरी लॉन्ग है। जब जितनी वेरी लॉन्ग हो इसका मतलब उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, जब बहुत स्लो जी है तो इससे क्या होगा कि रेडिएशन बहुत कम निकलेगी और बॉडी को एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इन दोनों केसेस के या तो ये स्टेबल है या फिर वेरी लॉन्ग लाइफ है इससे जो बना है। अगर इससे जी बनने वाला ऐसा हो जो कि जिस फर्ज करें एक्स बनता है उसकी हाफ लाइफ 5 आवर है, इसका मतलब 5 आवर से मुराद ये है कि ये 5 आवर में इसने अपनी कंसंट्रेशन पहले से आधी करनी है, ठीक है ना। जी अब जब ये 5 आवर में अपनी कंसंट्रेशन आधी करेगा तो इसको फौरन
डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा तेजी से। जब तेजी से डिसइंटीग्रेट होगा तो वो बॉडी को देंगी। लेकिन अगर फर्ज करें इससे बना है टेक्नीशियम 99 और इसकी हाफ लाइफ है 2.5 into 10⁵ इयर्स। 5 इयर्स का मतलब यह है कि 1 लाख साल। 10⁵ का मतलब जानते हैं ना आप, 1 लाख जी साल इसकी हाफ लाइफ है। 1 साल के बाद ये आधी कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि किसने 1 साल देखा? यहाँ पे तो 60 साल देखने मुश्किल हो गए, तो 1 लाख साल के बाद आधी कंसंट्रेशन आएगी। तो यहाँ तो ये तो अभी तक तो हम देखें कि 2000 साल अभी गुजारे हैं जब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये बनी हुई है, तो 2000 साल अभी जस्ट हुए हैं। तो ये 1 लाख साल की बात कर रहे हैं। तो वेरी लॉन्ग से मुराद 1 लाख साल या लाइक दैट, उसमें इससे रेडिएशन इतनी एक्सपोजर होगा नहीं बॉडी को। ठीक होगी बात? एनी अदर क्वेश्चन भाई? आपका नाम क्या है जिसने क्वेश्चन किया? ओके सर जी, एनी जी समझ आ गया मुझे। एनी अदर क्वेश्चन? भाई यार तुम भी क्वेश्चन कर दिया करो। सर सीटी स्कैन और एमआईआर में से बेस्ट कौन सा है? हाँ जी सर सीटी स्कैन और अच्छा जी सीटी स्कैन और एमआईआर में से बेस्ट कौन सा है? क्योंकि दोनों के एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं। तो स्कैन और एमआरआई। यस सर। अच्छा, पता क्या है उसमें ये होता है कि सीटी स्कैन एक रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, और एमआरआई जो है एक मैग्नेटिज्म इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी जो प्रोटॉन इनसाइड द बॉडी है उन्हें फ्लिपिंग करवाई जाती है थ्रू कंट्रास्टिंग एजेंट, उससे पहले कंट्रास्टिंग एजेंट इंजेक्ट किया जाता है। बहुत अपनी जगह पे अहमियत के हामिल हैं, दोनों जबरदस्त हैं, ठीक है जी। और दोनों का कह लें कि कोई नेमोल बदल नहीं है, दोनों ही अपने एमआईआर है वो ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता सीटी स्कैन की निस्बत। तो सीटी स्कैन मैं आपको बता देता हूँ, सीटी स्कैन में सिर्फ ये होता है कि इसने बाहर से एक्सटर्नल रेडिएशन देनी होती है, ठीक है जी। और एक्सटर्नल रेडिएशन से ये आपको सरफेस के हवाले से मार्फोलॉजी तो बता देगा कि ये इस हवाले से इसकी मार्फोलॉजी है, लेकिन जो एमआरआई है ये उस हर आर्गन के तमाम प्रोटॉन्स के इंफॉर्मेशन लेगा। वो प्रोटॉन सरफेस के ऊपर है, वो प्रोटॉन उस आर्गन के अंदर मौजूद है, किसी भी जगह पे मौजूद है, उसने सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो ड्यू टू दैट रीजन ये सिटी से ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन की सलाहियत रखता है, क्योंकि इसने इंटरनल इंफॉर्मेशन लेनी है। सिटी ने बाहर से अपनी यानी कि रेडिएशन दे के उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इट गिव यू अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन डेप्थ एज वेल। पर सर इसके भी वो डिसएडवांटेज इफेक्ट भी ज्यादा है एमआईआर के। डेफिनेटली आपको पता है कि आपको इसने हर प्रोटॉन को फ्लिपिंग करवानी है, पूरे उस आर्गन को एक दफा उसने अपनी जगह से उठा के रख देना है, तो ड्यू टू दिस इफेक्ट तो होगा। 6 महीने से पहले नहीं करवाना चाहिए, एक दफा हो जाए तो। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी बच्चों कोई और क्वेश्चन? अटेंडेंस लगा लूं मैं? जी आइए फरमाइए। हेलो सर। जी सर इसी चैप्टर के पेज नंबर 73 पर एक ना लाइन लिखी हुई है आफ्टर, जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर डेली अमाउंट इसकी उसके बारे में बताया कि डेली अमाउंट के अगर डिकेड हो लेस देन 1%, 74 पेज नंबर पे, यील्ड ऑफ टेक्नीशियम, इसके लास्ट पैराग्राफ में, इसके लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे, हाँ ये है, ठीक है सर यहाँ से जी यहीं से only once daily the amount of would have decayed to less than 1% in 24 hours and would not be significant enough to be considered in the calculation. Yes, okay. उसमें ये कहता है कि अगर आपने 24 आवर्स के बाद डेली एल्यूट करवाते हैं उसे, ठीक है ना जी सर,
जी जी डेली इल्यूशन से मुराद 24 आवर्स की बात करता है टेक्नीशियम के हवाले से, और ये हाँ बेस्ट वन इस कि जब 4 हाफ लाइफ इसकी गुजर जाती है तो इसका इक्विलिब्रियम वो बन जाता है जहाँ पे इसकी जो डिके प्रोसेस यानी कि कह लें कि एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम एक्टिविटी पे इसकी जो अपनी डिके प्रोसेस होता है वो बहुत कम रह जाता है, 1% होता है। ठीक है, इससे कम करवाएंगे तो फिर भी ये प्रोसेस, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम नहीं ना, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं बनता, आप केमिकल सिंपल केमिकल रिएक्शन ले लें, सिंपल। जी सर। शुरू में जब इक्विलिब्रियम अभी डेवलप नहीं होता उस वक्त भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बड़े तेजी से जा रहे होते हैं, और जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है फिर ऐसे लगता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हालांकि वो मोबाइल होता है, ठीक है ना, लेकिन नो नेट चेंज वाज अपीयर्ड, ना पता चलता है कि कोई आगे चीज गई है, ना पता चलता है कोई पीछे चीज आई है, ऐसे होता है ना। जी जी सर। तो दैट इज एक्चुअली एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। तो जब ये 4 हाफ लाइफ के बाद यानी 24 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है तो नो नेट डिके वाज अपीयर्ड इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि 1% से भी कम होती है, लिहाजा वो नेग्लिजिबल होती है, ये कहना चाहता जी सर। फिर उसके बाद सर ये फिर कहते हैं इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव इल्यूशन इज ओनली सेवरल आवर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नीशियन एक्टिविटी कुड बी एप्रिशिएबल मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। कहाँ पे लिखा हुआ है? इसी के आगे हाँ यहाँ वे पे? थोड़ा सा नीचे जाएं। ओके, यहाँ पे हाँ जी जी यही। okay, it should be pointed out that decay evaporation and नो सर इससे ऊपर वाला पैराग्राफ। however जी if जी the time difference between the two successive elution is only several hour, ठीक है, the contribution of the could be appreciable and must be taken into account। हाँ ठीक है ना, लेकिन अगर वो कहता है कि सेवरल आवर्स हैं, आपकी 24 घंटे नहीं है, डेली नहीं है, सेवरल आवर्स हैं, 10-20 घंटे हैं आपके, ठीक है, तो जी ऐसी सर। सिचुएशन जी में जी जो आपकी एक्टिविटी 0.0 टाइम पे होगी वो निग्लिजिबल आप नहीं कर सकेंगे, आप उसको एप्रिशिएटली आपको उसको वहां पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटी होगी वो कि कंसिडरेबल होगी, उसे कंसिडरेबल करना पड़ेगा, और उसे अकाउंट भी उस फार्मूले के अंदर भी लिखना पड़ेगा, इतनी इनिशियल एक्टिविटी पहले थी जब हमने एल्यूशन करवाई है, ठीक होगी बात, यानी कि इतने पीछे, यानी कि जब आप एक बात ज़हन में रखें, जब आप इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर एक्टिविटी एल्यूट करवाते हैं तो वो मैक्सिमम बाहर निकल आती है, पीछे कुछ भी नहीं रहता, ओनली 1% राउंड अबाउट या लेस देन, ठीक है, लिहाजा उसे आप कैलकुलेट नहीं करते फार्मूला के अंदर। लेकिन जब आप एक्टिविटी मेजर करते हैं 17 घंटे के बाद एल्यूशन करवा ली, तो अगली फिर आपने कुछ करवाई है कुछ घंटे के बाद, तो आपने फिर ये देखना है कि 17 घंटे के बाद जब आपने एक्टिविटी एल्यूट करवा ली थी तो उसके पीछे 24 घंटे की सूरत में तो 0% लेस देन 1% बची थी, लेकिन इस सिचुएशन में एक काफी ज्यादा अमाउंट बाकी मौजूद होगी, आपने उसको काउंट करना पड़ेगा आपको। ओके सर ठीक हो गया। ठीक हो गया जी सर आगे सर। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा जर्नल है सर, जितनी भी मेडिसिन हम सर यूज करते हैं सर, इसकी एक्सपायरी डेट कैसे सर मेंटेन करते हैं सर? हाँ, एक्सपायरी डेट कैसे मेंटेन करते हैं? अच्छा, देर आर फ्यू फैक्टर्स, वन थिंग इज दैट हाउ मच द chemical is stable, because you know each pharmaceutical is drug, each medicine is particular type of a chemical, ये chemical है, ठीक है, and have a particular type of structure, and this structure have a half life, हर चीज की हाफ लाइफ है, फिजिकल हाफ लाइफ है, मेरी भी फिजिकल हाफ लाइफ है, आपकी भी फिजिकल हाफ लाइफ है, दुनिया में हर इंसान की हर चीज की फिजिकल हाफ लाइफ है। मिसाल के तौर पे आप अगर जाए ना, अक्सर आप बड़े जोरों शोर से हम जाते हैं, दुकानों के ऊपर सेल लगी हुई है चीज़ों की, मिसाल के तौर पे कहते हैं जी ये 100 रुपए की थी, अब ये 70 रुपए की सेल लगा दी है, जिसे हम कहते हैं कि विंटर सेल या समर सेल
या समर क्लियर सेल या विंटर क्लियर सेल. व्हाई एक्चुअली वी डूइंग दिस? बिकॉज अगर वो कपड़ा या वो चीज या कोई भी चीज आप 1 साल के लिए उन्हें बनाया गया है, वो 1 साल नहीं बिकी है, वहीं पे पड़ी रही, तो उसकी हाफ लाइफ पहले से आधी रह गई है. ओके. और हम बड़ी खुशी से वो चीज 100 रुपए वाली जो चीज होती है वो 80 रुपए की ले आते हैं कि यार वो क्या बात है. नहीं भाई, आपने उसकी पहले जब उसकी सेहत थी, आपने जवान को नहीं लिया, आपने बूढ़े इंसान को ले लिया है. ठीक होगी बात. आपने जब उसकी फिजिकल लाइफ अभी स्टार्ट हुई थी और 1 साल थी, आपने उस वक्त चीज नहीं खरीदी. जब वो 1 साल उसका गुजर चुका है, उसके ऊपर लाइट इफेक्ट, उसके ऊपर इन्वायरमेंटल इफेक्ट, उसके ऊपर एयर इफेक्ट, ये सारे हो चुके हैं. उसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो काफी सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं. और फिर उन्होंने सेल लगा दी कि अगले साल में तो ये हो सकता है कि पूरी तरह ताकत ही ना रखता हो, पूरा स्टाफ ही उसका ना हो अगले साल. ठीक है ना. जैसे कि अभी आप एक बच्चा होता है, बड़ा मासूम होता है, लेकिन थोड़े से बाद जब उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी मूछ आ जाती है और उसका स्ट्रक्चर हुलिया चेंज हो जाता है, थोड़े अरसे बाद देखे और हुलिया चेंज हो जाता है, तो उसकी कीमत भी मुख्तलिफ होती चली जाती है. तो सिमिलर वाज थिंग इज देयर कि जो हम बात करते हैं फिजिकल लाइफ की, ये केमिकल, अब ये केमिकल क्या है, हर चीज केमिकल से मिलकर बनी, वो एक केमिकल है. तो भाई उनके अंदर भी हाफ ये जो लाइफ रोशनी का इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट काउंट हो रहे होते हैं. बट इफेक्ट ज्यादा कर रहा होता है क्योंकि वो उन्हें एयर टाइट कंडीशन दी जाती है वो. लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो एयर टाइट कंडीशन में नहीं रखी जाती, वो सिंपल वायल्स के अंदर होती हैं. इन ऑल सिचुएशंस उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, सिंपल रेडिएशन, जितनी भी उसके ऊपर इफेक्ट करती रहती हैं, और उनका स्ट्रक्चर कदरे उनकी एक्टिविटी लूज होती चली जाती है. यानी कि वो मेडिसिन जो अभी नहीं बन के आप आई है, आप उसको इस्तेमाल करें, और वो एक्टिविटी, वो मेडिसिन जो 1 साल पड़ी रही, उसको इस्तेमाल करें. उन दोनों की एक्टिविटी में फर्क होगा. अगर पहली ने 100% काम किया तो ये 80% काम करेगी. कीप इन योर माइंड, दिस इज एक्सपायरी वन. और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वो इसकी एक्टिविटी 50% से कम चली जाती है. जब 50% से एक्टिविटी कम हो जाती है, कहते हैं कि ये इसकी एक्सपायरी डेट है. ओके. जी सर. जब एक्टिविटी 50% से कम हो जाए तो दैट time is known as expiry date, और it was calculated with the animal trials के साथ साथ ये कैलकुलेट की जाती है हर मेडिसिन को. ये एक यानी कि एक पूरा एक लंबा प्रोसीजर है. दिस वाज द प्रोसीजर. ये देना पड़ता है जब किसी भी ड्रग को अप्रूवल लेना होती है FDA से, तो ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन देना पड़ती है कि ये कहाँ तक इसकी हाफ लाइफ 50% से कम आती है, और जिस टाइम पे आज वो इसकी एक्सपायरी डेट रख दी जाती है. ठीक है भाई. जी सर. एनी अदर क्वेश्चन? आपका नाम क्या है? तहसीन अब्बास. तहसीन अब्बास. वाओ, आपने सवाल किया है यार. जिंदाबाद. एक्सीलेंट. अच्छा बच्चों, एक चीज बहुत अहम है. आई विल डिस्कस बिकॉज एट दिस मोमेंट देयर आर बिकॉज क्योंकि इसके बाद ये 2 या 3 लेक्चर होंगे और उसके बाद ये सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में आप लोगों से जो डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च कि आपने अपना सुपरवाइज़र चूज़ करना है. ठीक है जी सर. तो उसमें ये बहुत अहम चीज़ होती है कि हर टीचर आपको बता दे कि मेरा एरिया ऑफ डोमेन क्या है जिसमें हम रिसर्च करवाते हैं. तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो मेरी डोमेन ऑफ रिसर्च है वो 2 हैं. एक तो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करवाता हूँ. उसके हवाले से मेरी लैब इंतहाई डेवलप्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट मेरे अपने प्रोजेक्ट से पड़े हुए हैं. 3 प्रोजेक्ट से. और दूसरा काम वो मैं रेडियो फार्मास्यूटिकल के हवाले से करवाता हूँ. और इसमें रेडियो फार्मासी अगर 1 साल में मेरे पास 6 या 7 स्टूडेंट आते भी हैं तो उनमें से मैं कोशिश करता हूँ कि 2 या 3 को रेडियो फार्मास्यूटिकल पर काम दूँ और बाकियों को प्लांट पर काम दे दूं, प्लांट के ऊपर. ठीक है. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी काम नहीं करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि पीएम हॉस्पिटल में या लाइक दैट रेडियो फार्मास्यूटिकल काम है आमतौर पे यहीं पे करवाते हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो पिछले साल मेरे पास
स्टूडेंट थे, यानी कि मैंने 6 स्टूडेंट अपने पास रखे थे, तो 6 के 6 पिन स्टिक गए थे इस्लामाबाद में, वहीं पे काम किया था। जो इस साल अभी काम कर, इनमें से 2 को काम दिया, इसके ऊपर 4 को मैंने काम प्लांट्स के ऊपर ही दिया हुआ है। तो इसलिए आप लोगों के पास चॉइस है, जस्ट इट इज आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन के व्हाट टाइप ऑफ माय वर्क, डेफिनेटली ईच टीचर शुड हैव टू डिस्कस कि मेरा ये काम है, Sir? ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आप, और जिसने भी यानी कि जो भी ये आपकी अपनी आपने सॉर्ट आउट करना है, अच्छे तरीके से देखना है, और उसके बाद यू शुड हैव टू डिसाइड कि हमने क्या करना है। लेकिन कल मैं दोबारा आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा अपने काम की। सर स्टूडेंट आपने सिलेक्ट कल इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि अभी मीटिंग खत्म हो रही है, 1 आध सेकंड रह गए हैं, तो इस हवाले से कल मैं आपसे थोड़ा सा इस डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।